ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 13 سالہ بیٹی اسکول جاتی تو واپس آ کر کہتی، اماں تم گندی عورت ہو۔ اس کی یہ بات سنتے میں اسے مارتی۔ ایک دن اس کے اسکول گئی تو اس کی ٹیچرز بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب میں پریشان ہو گئی تھی۔ جب ایک بار غصے سے بیٹی سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کہتی ہے تو وہ بولی، آپ جو روزانہ اپنے بستر کے نیچے رکھتی ہو مجھے معلوم ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں کچھ بھی نہیں رکھتی تھی۔ میں فوراً کمرے میں گئی اور غصے سے چادر ہٹائی تو دل لرز اٹھا۔ میرا نام سمرا ہے اور میں لاہور کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ میری زندگی کے کچھ لمحے بہت ہی کٹھن تھے اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ آج میں اپنی کہانی جس وقت سے سنا رہی ہوں وہ میرے بچپن کا دور تھا اور میں اس وقت صرف 15 سال کی تھی۔ میرا خاندان گاؤں میں آباد تھا اور میرے خاندان کی ساری نسل کا تعلق ہی اسی گاؤں سے تھا۔ دادا ابو بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی اس گاؤں میں کافی زیادہ زمینیں تھیں۔ وہ اپنے دور کے کافی اچھے انسان تھے اور کافی نرم مزاج تھے۔ سبھی ان کی کافی تعریف کرتے تھے۔ دادا ابو کی شادی پاکستان سے بننے سے پہلے ہو گئی تھی اور دادی امی کا تعلق ایک ہندو خاندان سے تھا۔ انہیں دادا ابو سے محبت ہو گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اگر شادی کرے گی تو صرف دادا ابو سے کرے گی۔ دادی امی کا خاندان کافی امیر تھا۔ ان کا سونے کا کاروبار تھا۔ وہ لوگ سونے کی کافی چیزیں بناتے تھے۔ دادا ابو نے ان سب کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ دادی امی جب اسلام قبول کریں گی تبھی وہ ان سے شادی کریں گے۔ دادی امی نے وہ شرط قبول کر لی تھی اور اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دادا ابو نے شرط کے مطابق ہی ان سے شادی کر لی تھی۔ اس وقت لوگ اس بات کو برا سمجھتے تھے کہ کوئی ہندو مسلمان ہو جائے۔ دادی امی کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ سب لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کے خاندان والوں کو بھی لوگوں نے مار دیا تھا، پر دادا ابو انہیں یعنی کہ دادی امی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ایک خفیہ جگہ میں رہنے لگے تھے تاکہ انہیں کوئی بھی تلاش نہ کر سکے۔ کچھ دیر تک وہ چھپ کر رہتے رہے۔ جب دادی امید سے ہو گئیں، انہی دنوں میں جنگ بھی شروع ہو گئی تھی۔ لوگ اب پاکستان آنے لگے تھے۔ دادا ابو نے اپنا سب کچھ مٹی کے اندر دفن کر دیا اور دادی امی کی منتیں کی تھیں کہ وہ ان کے ساتھ پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں۔ دادی امی کو اپنی جان کی نہیں بلکہ اس ننھی جان کی فکر تھی، اس وقت جو ان کے پیٹ میں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی اس جان کو نقصان پہنچائے، لیکن دادا ابو نے یہی کہا کہ وہ ان پر بھروسہ رکھیں اور ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دادی امی تیار ہو گئی تھی۔ اس طرح انہوں نے ہجرت کر لی تھی اور اس گاؤں میں آ گئیں۔ اس گاؤں میں ہندو رہتے تھے جنہوں نے ہندوستان جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ پاکستان کو اپنا ملک تسلیم کرتے تھے۔ پر جب انہوں نے مسلمان کو اپنے گاؤں آتے دیکھا اور پناہ لیتے دیکھا تو وہ اس بات کے خلاف ہو گئے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ان کا گاؤں ہے اور اس گاؤں میں مسلمان نہیں آ سکتے، پر وہ گاؤں ہندو مسلم پر مشتمل ہو چکا تھا اور ہندو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس طرح ایک اور جنگ چھڑ چکی تھی۔ دادی امی نے میرے ابو کو جنم دیا تھا تو دادا ابو کافی خوش ہوئے کیونکہ اس زمانے میں بیٹے کی پیدائش کو باعث فخر مانا جاتا تھا اور اس بات پر بہت جشن منایا جاتا تھا۔ دادا ابو نے بھی ویسے ہی کیا اور اس جشن کے چکر میں کافی زمین خریدی تھی۔ سب لوگ حیران ہو گئے تھے اور ہندو اس بات سے اور بھی چڑھ گئے تھے۔ وہ اب دادا ابو کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ابو اب بڑے ہوتے گئے تھے۔ وہ بھی دادا ابو کی طرح سادہ اور نرم مزاج رکھتے تھے اور ان کو اس گاؤں سے کافی لگاؤ ہو گیا تھا۔ دادا ابو نے کافی ترقی کی تھی۔ اس طرح اس گاؤں میں ان کا کافی نام اونچا ہو گیا۔ ابو بھی بڑے ہو گئے تھے اور وہ لوگ 10 سال تک 3 بھائی ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد اس گاؤں کے حالات بدلنے لگے۔ دادا ابو سے لوگ بغاوت کرنے لگے تھے اور ان سے وہ زمینیں واپس چاہتے تھے، پر دادا ابو نے انکار کر دیا تھا کہ وہ یہ زمینیں اپنی محنت سے حاصل کر چکے ہیں، اس لیے کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ اس بات پر ہندو لوگ خلاف ہو گئے تھے اور دادا ابو کو مارنے کی سازش کرنے لگے تھے۔ ایک دن دادا ابو اپنی زمین میں تھے کہ ان پر حملہ ہو گیا اور وہ اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ بات ابو اور دادی امی کے لیے کافی دکھ کی بات تھی۔ دادی امی کافی مضبوط تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے ہار مان لی تو ہندو نے زمین پر قبضہ کر لینا ہے۔ ان کا حوصلہ بلند تھا، اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ڈٹ کر یہ معاملہ حل کروائیں گی اور وہ یہ کیس پنچایت تک لے گئی تھی اور انہوں نے انصاف کی اپیل کی تھی کہ کیسے 3 چھوٹے بچوں کے باپ کا قتل ہوا ہے۔ پنچایت نے ان کی اس بات پر غور کیا اور اس طرح ہندو قاتل کو پکڑوایا تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ ہندوؤں کی تعداد کافی کم ہونے لگی تھی اور جو بچ گئے تھے وہ واپس چلے گئے تھے، لیکن جب تک وہ لوگ موجود تھے اس وقت تک مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔
इन हिंदुओं ने मुसलमानों को जोड़ कर रखा था, पर इसके बाद गांव में मुसलमानों ने अपने फिरके बना लिए थे और एक दूसरे से अलग हो गए थे। सारी ज़मीन तकसीम हो गई थी। सबको यही मालूम था कि अब्बू की जो भी ज़मीनें हैं वो उनकी अपनी नहीं हैं और दादा अब्बू ने ज़बरदस्ती ली हैं, जबकि ये बात सरासर झूठ होती थी। लेकिन बाकी मुस्लिम ने इस बात को आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू कर दिया था। इस तरह मेरे अब्बू के काफ़ी दुश्मन पैदा हो गए थे, जो कि मुसलमान थे। दादा अब्बू के जितने भी दुश्मन थे, कम अज़ कम वो हिंदू होते थे। मेरे अब्बू अपने भाइयों में बड़े थे, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली थी। इन सब ने अब्बू पर केस कर दिया कि ये ज़मीन गैर कानूनी तरीके से दादा अब्बू ने अपने पास ली थी। अब्बू और दादी अम्मी इस बात पर काफ़ी शौक हुए थे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई इस तरह का इल्ज़ाम इन पर लगा सकता है, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। दादी अम्मी ने फैसला कर लिया था और इस ज़माने में एक जवान लड़के के सामने अपना केस बयान किया था। वो लड़का अब्बू की उम्र का था, जबकि वो एक वकील था और इस ज़माने में उसका काफ़ी नाम था। उसने अब्बू की काफ़ी मदद की थी। इस तरह अब्बू इस केस से बाहर निकल गए थे। अब्बू की दोस्ती उससे हो गई थी। इसका नाम तारिक था। वो अब्बू की काफ़ी इज्जत करते थे और दादी अम्मी ने उन्हें अपना बेटा बना लिया था। ये केस ख़त्म हो गया था, लेकिन ये दुश्मनी ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही थी। सभी अब्बू को मुंह के बल गिराने की ताक में लगे रहते थे, लेकिन ऐसा करने में नाकाम ही रहते थे। अब्बू की शादी 24 साल की उम्र में हुई। जिससे हुई थी वो तारिक की बहन थी और इस तरह तारिक मेरे मामू लगते थे। शादी की ख्वाहिश तारिक की थी। अब ये मुकाबलेबाजी होने लगी थी कि कौन सा ख़ानदान सबसे आगे बढ़ता है। अब्बू अम्मी की शादी के 2 साल बाद ही मैं पैदा हुई थी और वो भी काफ़ी दुआओं के सहारे ही इस दुनिया में आ सकी थी, क्योंकि मेरी अम्मी को हमेशा से ही ये खबर मिलती थी कि वो माँ नहीं बन सकती हैं। नाउम्मीद हो जाती थी और अब्बू उन्हें हौसला देते थे कि जो भी होगा कुदरत की भलाई से होगा, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होगा। इस तरह अम्मी ने 2 साल सब्र किया, जिसके बाद मैं पैदा हुई तो जैसे पूरा ख़ानदान खुशियों से चहक गया था। हर तरफ गहमा गहमी हो गई थी। मैं सबकी चहीती थी और तारक मामू मुझसे काफ़ी मोहब्बत करते थे। वो पूरे पाकिस्तान के सबसे अच्छे वकील बन गए थे। वो शहर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अब्बू ने इस बात को तस्लीम न किया कि उन्हें शहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। उनका ख्याल था कि उन्हें इसी गांव की ज़मीन की रखवाली करनी चाहिए और वैसे भी बड़े भाई थे। इस तरह हमारा सारा बचपन इसी गांव में गुजरा था। मैं अब्बू की बहुत ही लाडली थी और उनके आसपास रहती थी। हमेशा उनके साथ बाहर जाने की ज़िद करती थी। ये आदत अम्मी को बहुत बुरी लगती थी। वो हमेशा मुझे रोकती थी और टोकती थी, पर मैं उनकी बात नहीं मानती थी और अपनी ज़िद पर कायम रहती थी, क्योंकि मुझे इस तरह ही मज़ा आता था। पर अब्बू मुझे कभी भी रोकते नहीं थे। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, इस वजह से वो मुझे सब कुछ करने का मौका देते थे। मैं 16 साल की हो गई थी और अब मुझे भी ज़मीन की समझ बूझ हो गई थी। मुझे इस काम में काफ़ी दिलचस्पी होने लगी थी। अम्मी हमेशा कहती थी कि मेरे काम ये नहीं है मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूं, पर मैं उनकी बात नहीं मानती थी और यही कहती थी कि मैं बेटी के साथ साथ बेटों वाले काम करूंगी और वो सब कुछ कर सकती हूँ जो बेटे एक ज़मीन के लिए करते हैं। मेरा हुलिया अब लड़कों वाला हो गया था। मैं बहुत ही खुली शलवार कमीज़ पहन लेती थी और मेरे बालों का स्टाइल भी लड़कों की तरह होने लगा था। इस हुलिये को अम्मी देखती थी तो बहुत गुस्सा करती थी कि मैं लड़की हूँ और लड़की ही रहूँगी और लड़की कमज़ोर होती है, उसे कोई भी मरोड़ सकता है और कुचल सकता है। पर मैं अपनी बात पर कायम रहती थी कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि मुझसे पंगा ले। अब मेरा बोलने का तरीका भी इस किस्म का होता था। अब्बू मुझे देखकर मेरी शरारत समझकर और बचपना समझ के इस बात को नज़रअंदाज कर देते थे, पर अम्मी को मेरी फ़िक्र होने लगी थी, क्योंकि मैं रोज़ शाम को बाहर ज़मीन पर निकल जाती थी और अपनी ज़मीन का चक्कर लगाया करती थी। सारी फसल देखा करती थी और सबको उनका काम समझाती थी। इस तरह मुझे रात हो जाती थी तो रात को घर जाती थी, जबकि अब्बू अब पंचायत के काम संभालते थे। इस तरह गांव का सारा निज़ाम हमारे अंडर था। दूसरे ख़ानदान की ज़मीन हमारी ज़मीन के सामने थी, जिधर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। मेरा ध्यान भी अपनी ज़मीन पर होता था। अब मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। अब्बू ने मुझे इस बात पर कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मेरा साथ दिया था और यही कहा था कि जैसे मेरी मर्ज़ी है मैं वैसे करूँगी। इस तरह दिन गुजरते जा रहे थे और अब दूसरे ख़ानदान की लड़कियां पढ़ने लिखने शहर जाने लगी थीं, जबकि इधर मैं अपनी ज़मीन के चक्कर लगाने में मसरूफ़ होती थी और मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं होता था कि कौन क्या कर रहा है। अम्मी को और अब्बू को भी फ़िक्र होती थी कि न जाने मेरा क्या बनेगा। मैं पढ़ाई के मामले में दूसरे ख़ानदान की औलादों से पीछे रह गई थी। वो सारे ख़ानदान मुझे इस बात से जानते थे कि मैं बहुत ही आवारा बन गई हूँ और मेरा किरदार ख़राब है।
मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं भी ये सुनकर शौक हो जाती थी कि अगर अपने अब्बू का हाथ बटाने से किसी का किरदार मैला हो सकता है तो दुनिया में कोई भी सही काम गलत हो सकता है। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और मैंने अपना ये काम जारी रखा था। लेकिन एक दिन अचानक ही मेरी ज़िंदगी का वो मोड़ आया जिसने मेरी ज़िंदगी की काया पलट दी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी क्योंकि मुझ पर इल्ज़ाम लगने लगा था। उसकी असल वजह ये थी कि रात को जब मैं अपनी ज़मीन से वापस जा रही थी तभी किसी ने मुझे पीछे से जकड़ लिया और इस अंधेरे में मुझे मालूम न हो सका कि वो कौन था जिसने ये सब किया था। पर मैंने अपने आप को छुड़वाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन मैं खुद को आज़ाद न करवा सकी और इसका नतीजा ये निकला कि मुकाबिल ने मेरे सर पर एक स्याह मास्क चढ़ा दिया। इस स्याह मास्क की वजह से मुझे दिखाई देना बंद हो गया था और मैं शौक में हो गई थी कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। पर मैंने हिम्मत से काम लिया था और अंदाज़ा लगा लिया था कि जो कोई भी मुझे लेकर जा रहा है वो कोई जीप चला रहा था। इससे मुझे पता चला कि वो जीप वाला दूसरे ख़ानदान के लोगों में से कोई होगा। इसलिए मैंने हिम्मत से काम लिया और कुछ देर बाद बेहोशी का ड्रामा करने लगी ताकि उससे लगे कि मैं बेहोश हो गई हूँ। कुछ देर बाद ही जीप के रुकने की आवाज़ आई तो वो शख्स नीचे उतरा और मुझे भी जीप से नीचे उतारा। जब वो मुझे एक तरफ लेकर जा रहा था हर जानिब खामोशी थी और सुनसान इलाका था जिस पर से कदमों की आवाज़ें ही बस आ रही थीं। मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया ताकि उसे यही लगे कि मैं बेहोश हो गई हूँ। कुछ देर बाद ही वो मुझे एक रूम में लेकर जाने लगा। मेरा दिल बंद होने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा था। कुछ देर बाद मेरे चेहरे से मास्क हटाया गया पर मैंने अपना चेहरा एक जानिब करके ये दिखाया कि जैसे मैं बेहोश हूँ। कुछ देर बाद मैंने अपनी एक आंख हल्की सी खोली, लेकिन जैसे ही मैंने आंख खोली तो मेरी नज़र उस शख्स की उस जगह पर पड़ी जिधर गन मौजूद थी। मैंने अपनी आंख खौफ से बंद कर ली थी। मुझे मामला कुछ ज़्यादा ही संगीन लग रहा था, लेकिन अचानक से वो शख्स कहका लगाने लगा और कहने लगा था कि आज रात गुजर जाएगी तो कल की सुबह में ये खबर अखबार की ज़ीनत बन जाएगी कि मैं उसके साथ एक पूरी रात थी। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे अब सही मायनों में शौक लगा था। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी जिससे अब्बू की इज्जत पर एक हर्फ भी आँच आती। इस वजह से मैंने अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश की और एक प्लान बनाया था। बहुत देर तक इस प्लान पर सोचा था, लेकिन इस प्लान को फॉलो करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा न था। इसलिए मैंने उसी पर अमल करने का सोचा और एक ही दम से इस जगह से गन निकाल ली और गन लोड थी और मेरे एक निशाने से वो इंसान ज़मीन बेहोश हो गया था। मेरा पसीने से बुरा हाल हो गया था। मेरे हाथ कांप रहे थे और वो गन मेरे हाथ से छूट गई थी। मुझे अपनी जान बचानी थी क्योंकि कुछ भी हो सकता था। मैं भागने लगी थी जब अचानक ही सामने से एक औरत से टकराई। मैं उसे पहचान गई थी। ये औरत इसी शख्स की बीवी थी जिसे मैं अंदर मार कर आई थी। उसका नाम तबस्सुम था। वो मुझे गिरने से बचाने लगी। मेरा हल्क खुश्क हो चुका था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कल ही पकड़वाई जाऊंगी। इस कत्ल के केस में मुझे जेल की सज़ा सुना दी जाएगी। मेरी ज़िंदगी तबाह होने वाली थी। घर तक आते रात के 11 बज गए थे। सब घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे थे, पर मेरी गैर हालत देखकर सब ने ही अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब्बू भी परेशान थे और मुझसे पूछने लगे। मैंने उनको सब बता दिया कि वो शख्स कल सुबह मेरी किरदार कुशी करने का प्लान कर रहा था और इस वजह से मैंने उसका काम तमाम कर दिया। और दूसरी बात ये भी बताई कि तबस्सुम ने भी मुझे देख लिया है और उसका शक मुझ पर ही जाएगा, बल्कि उसे यकीन होगा कि उसके शौहर की कातिल मैं ही हूँ। अम्मी ने ये सब सुना तो रोने धोने लग गई, जबकि अब्बू ने सब्र का मुजाहिरा किया था। अब मुझे अगली सुबह का इंतज़ार था और वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि तबस्सुम ने वावेला मचा दिया था कि मैंने उसके बेगुनाह शौहर को इस दुनिया से भेज दिया। और भी बहुत से लोग शोक मनाने लगे थे। अब्बू ने सबको बता दिया था कि इसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की थी। इस वजह से मुझे मेरी इज्जत बचाने के लिए वो सब करना पड़ा और इसके बायस मेरी कोई भी सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि जो लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब करे उसको कानून कुछ भी नहीं कह सकता। अब्बू की बात पे सबका मुंह बंद हो चुका था, पर तबस्सुम चुप करके बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। उसने कसम खा ली थी कि वो मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। ये मामला ख़त्म हो गया था, पर अब्बू ने फैसला कर लिया था कि वो मेरी जल्द ही शादी कर देंगे और मुझे शहर भेज देंगे। पहले ये बात अम्मी करती थी, पर अब्बू ने भी ये फैसला सुनाया। मुझे काफ़ी दुख हुआ था, पर अब मैं इनके फैसले के आगे अपनी बात भी नहीं रख सकती थी। मुझे उनकी बात माननी पड़ी थी। मेरे मामू तारक का एक ही बेटा था जो कि काफ़ी ज़हीन और समझदार था। वो मुझसे बहुत बड़ा था, लेकिन हम दोनों कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं थे
और ना ही हमारी आपस में कभी कोई बातचीत हुई थी। इस वजह से मैं उसे इतना जानती भी नहीं थी। इसका नाम वसीम था। वो शहर में रहता था और उसी शहर में उसकी एक नई नई जॉब लगी थी। अब्बू अम्मी उसके घर रिश्ता लेने गए थे और मैंने ये पहली दफ़ा देखा था कि लड़की वाले लड़का देखने जा रहे थे। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी, पर सबके बाद मेरी ज़ुबान को कुफल लग गया। अब वही होता था जो अम्मी अब्बू बोलते थे। मैं इनके दरमियान कुछ भी नहीं बोलती थी। कुछ दिनों के बाद हमारा रिश्ता पक्का हो गया था, लेकिन ये बात जैसे ही तबस्सुम को मालूम हुई तो उसने फैसला कर लिया था कि वो मुझे बर्बाद करेगी। वो सोचने लगी थी कि मैं उसका घर उजाड़ कर अपना घर कैसे आबाद कर सकती हूँ। उसने उसी वक्त अखबार में ये खबर दे दी कि मुझ जैसी बदकिरदार लड़की ने एक बीवी के शौहर को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। ये अखबार की खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और वसीम तक भी फैल गई। वसीम शौक हुआ था, लेकिन तारक मामू ने उसे समझाया था और उनके समझाने की वजह से उसने इस बात को भुला दिया था। अब अब्बू की कोशिश थी कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए और मज़ीद कोई ड्रामा ना हो। इस वजह से मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं और मेरी शादी हो गई थी। मैं रुखसत होकर शहर आ गई। मुझे शहर से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। मैं रोज़ ही अपने गांव की सबस हरियाली और उसकी खुशगवार ज़िंदगी को याद करती थी और फिर खून के आंसू रोती थी। शहर के खाने देखकर मुझे गांव के देसी खाने याद आते थे। शहर की आलूदगी देखकर गांव की जरखेज ज़मीन याद आती थी। शहर का शोर सुनकर मेरे कानों में गांव की पुरसुकून हवा लहलहाती थी और परिंदों का शोर चहचहाता था। पर यह सब अब मुझे और मुयस्सर नहीं हो सकता था। हमारी शादी जिन हालात में हुई थी, इस वजह से वसीम और मेरी शुरू में इतनी अच्छी दोस्ती नहीं हो सकी थी। मैं अब बिल्कुल बदल चुकी थी और एक घरदारी वाली लड़की बन गई थी। मुझे वो पल याद आते थे जब मैं लड़कों वाला हुलिया बनाकर ज़मीन की तरफ चली जाती थी और बहुत अय्याशी करती थी। मेरी उम्र भी इतनी नहीं होती थी, लेकिन आजकल के मुआशरे को ऐसी लड़की पसंद नहीं। वो लड़कों के शाना बशाना होकर काम करे और कदम से कदम मिलाकर चले, बल्कि आजकल लड़कों को वही लड़की अच्छी लगती है जो उससे एक कदम पीछे हो और उसकी हर बात पर हाँ करे और हर बात माने। यही वजह थी कि मेरी वो सारी ज़िंदगी छीन गई थी, पर मैंने इसमें अपनी भलाई समझी थी और समझौता करने का फ़ैसला किया था कि अगर मेरे नसीब में ये सब लिखा था तो ये सब होकर रहेगा। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और मेरी एक बेटी हो गई थी जो वसीम और मेरी आंखों का तारा हो गई थी, इसलिए हमने उसका नाम तारा रखा था। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और इस सब को भुला चुकी थी। तारा जब 4 साल की हुई तो वसीम ने फैसला किया कि एक शहर में काफ़ी अच्छा स्कूल खुला है और इस स्कूल में तारा को दाखिल करवाएंगे। मैं भी उनकी बात मान गई, पर इस दिन मुझे घर पर काम था। जब भी वसीम को तारा के साथ जाने का कहा और उसके दाखिले का जिम्मा वसीम को दे दिया। वसीम ने इसका दाखिला करवा दिया था, लेकिन वो कुछ परेशान था क्योंकि हेड ने तारा की अम्मी यानी कि मेरा नाम भी उससे पूछा था और नाम जानकर वो चौंक गई थी। मैंने उसको कहा कि उसे मेरा नाम पसंद आया होगा, तभी उसने ये रद्द अमल ज़ाहिर किया होगा, लेकिन वो कहने लगा कि कुछ और बात है। पर तारा के चक्कर में हम ये इशू भुला चुके थे। मैंने अब एक बात नोट की थी कि तारा मुझसे काफ़ी उलझी हुई रहने लगी थी। वो बात बात पर मुझसे मूड भी बना लेती थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे और तारा 13 साल की हो गई थी। एक दिन वो मुझसे ज़िद करने लगी कि कल उसकी हेड ही उसे घर ड्रॉप करने आएगी। मैंने उसकी ज़िद मान ली थी, लेकिन उसकी हेड ने अपने आप को बुर्का और नकाब से छुपाया हुआ था। मैंने उसकी हेड को सलाम किया। ये वही हेड थी जो शुरू से तारा के स्कूल में थी। मैंने हेड को पानी पीकर जाने का कहा, लेकिन जैसे ही किचन में गई तो हेड मेरे रूम में चली गई। मुझे हैरानी हुई, लेकिन जब वो बाहर निकली तो वो मेरे हैरान चेहरे को देखकर कहने लगी कि वो वॉशरूम गई थी। ये मेरी तारा की हेड से पहली मुलाकात थी, पर इसके बाद तारा का मेरे साथ रवैया और भी बुरा होने लगा। अब वो मुझे साफ साफ कहने लगी थी कि मैं बहुत बुरी हूँ और मैं अच्छी नहीं हूँ। एक दफ़ा मैंने उससे प्यार से समझाया था और उससे पूछने की कोशिश भी की थी कि ये कौन है जो उसका दिमाग मेरे खिलाफ कर रहा है, पर तारा कुछ भी ना बताती थी। अब वो मेरे हाथ से कुछ भी नहीं खाती थी और कहती थी कि उसकी ज़िंदगी में मेरा कोई वजूद नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मैं शौक हो जाती थी। उसको इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें कौन सिखा रहा है, पर मुझे समझ नहीं आती थी कि ये कौन हो सकता है। एक दफ़ा वो मुझे बहुत सुनाने लगी थी और इस पर वसीम को भी तारा पर काफ़ी गुस्सा आया था। मेरा दिल क्या था कि मैं उसे एक थप्पड़ लगाऊं ताकि वो तमीज़ याद रखे, पर वसीम मुझे ये सब करने से मना करते थे कि वो अभी बच्ची है। कुछ दिन बाद उसने एक दफ़ा हद ही कर दी। जब उसने मुझे बदकिरदार कहा था तो मेरा पारा हाई हो गया और मेरा हाथ उस पर चल गया। मेरा दिमाग घूम गया था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं खुद को कैसे रोकूं। लेकिन कुछ देर बाद वो मुझसे सॉरी करने लगी थी।
तब मैंने उसको छोड़ा था। वो मुझे अब बताने लगी थी कि उसकी हेड ने ही बताया कि मैं अच्छी मामा नहीं हूँ। मुझे शौक लगा था और उसे प्यार से समझाया था कि ये सब झूठ है और ऐसी कोई बात नहीं। वो आगे से कहने लगी, अगर ऐसी बात नहीं तो मेरे बेड के नीचे ये सब कुछ क्यों पड़ा हुआ है। मैं शौक हो गई थी और उससे कहने लगी कि मेरी बेड की चादर के नीचे ऐसा कुछ भी नहीं। इस पर वो मुझे अपने साथ ले गई। मैंने जल्दी से अपने बेड की चादर को हटाया तो मैं शौक हो गई। मैं 13 साल पहले वाली दुनिया में फिर से चली गई, जिधर से मेरी जिंदगी बदली थी। मेरी बेड की चादर के नीचे सच में कुछ था और उन अखबार का एक पेज था जिस पर मेरी खबर तबस्सुम ने छुपवाई थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी कि ये मेरे रूम में कैसे आया। अब मुझे तारा बताने लगी थी कि उसकी हेड हमेशा यही कहती है कि मैं अच्छी मामा नहीं हूँ। उन्होंने ही बताया था कि मेरे तकिए के नीचे ये सब है। मैं इसकी बात सुनकर शौक हो गई थी। मुझे इस हेड पर शक होने लगा था। मैं जानना चाहती थी कि वो हेड कौन है। कि जब तारा उसके साथ घर उसके कहने की वजह से आई थी, उसे तबस्सुम ने ही आगे किया था ताकि वो मुझसे इजाज़त मांग सके और ज़िद कर सके और तबस्सुम तारा का सेहरा लेके मेरे घर आ जाए और अखबार के पेज किसी भी तरीके से मेरे रूम में छुपा सके। जब ही वो मेरे रूम में उस दिन चली गई थी और जब मैंने उससे पूछा था तो वो वॉशरूम का बहाना करने लगी। मुझे अब तबस्सुम की शक्ल को देखकर रंज हो रहा था कि वो इस सब का बदला लेने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रही है और एक बेटी को माँ से दूर कर रही है। अब इस वक्त तबस्सुम मेरे सामने कहके लगाने लगी थी। मैंने तारा को इशारा किया था कि वो बाहर जाकर खेले, मुझे उसकी हेड से बात करनी है, पर उसने तारा को रोक दिया था और तारा ने उसकी बात मान ली थी। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था, लेकिन अब मेरी बेटी तारा बिल्कुल अच्छी थी और मासूम थी। वो जो भी करती थी सब में उसका कोई कसूर नहीं था, बल्कि वो तो तबस्सुम के कहने पर यह कर रही थी। मैंने तारा का बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर वापस आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि अब जल्द से जल्द ही तारा का स्कूल बदल दूंगी और तबस्सुम का साया भी अपनी तारा पर नहीं पड़ने दूंगी। तारा ने काफ़ी जिद की थी कि उसे उसी स्कूल में ही पढ़ना है और उसी हेड के पास जाना है, पर मैंने उसे प्यार से समझाया था कि वो हेड बुरी आंटी है और उसने तारा को मामा के खिलाफ किया। इस पर तारा शौक हो गई थी, पर मैं उसे अभी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। वसीम से मैंने बात कर ली थी और स्कूल तब्दील करने का कहा। वो भी मान गया था और इस तरह हमने तारा का स्कूल तब्दील करवा लिया। वो अब एक और स्कूल जाने लगी थी, पर तारा अब 1 साल पीछे हो गई थी। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों, मुझे बस अपनी बच्ची को अच्छा माहौल देना था। तारा अब कुछ वक्त के बाद पहले जैसी हो गई थी और इस सब को भूलने लगी थी। मैंने भी सुख का सांस लिया था, लेकिन एक दिन अचानक ही मुझे पता चला था कि तबस्सुम ने वो स्कूल गैर कानूनी तरीके से चलाया है और बच्चों को अच्छे नंबर देती है। सबको नंबर देने का फ़ायदा यही होता है कि सभी अपने बच्चों को दोबारा इसी स्कूल में करवाते हैं। ये सोचकर मैंने वसीम से बात करना शुरू की कि वो किसी भी ग्रुप को इस बात से आगाह करे। वसीम ने ऐसे ही किया था और तबस्सुम का वो स्कूल सील हो गया था। तबस्सुम वापस गांव चली गई थी। मैंने शहर में सुख का सांस लिया था। तारा बड़ी हो गई थी और अब वो 9वीं जमात में पढ़ने लगी थी। मैं ज़िंदगी में कभी भी उसे गांव नहीं लेकर गई थी और मैंने ये बात मान ली थी कि शहर होना तारा की आने वाली ज़िंदगी के लिए काफ़ी अच्छा फ़ैसला होगा। अब्बू अम्मी अभी भी शहर आया करते थे और तारा के लिए बहुत से तोहफे लाते थे। तारा में उन्हें मेरी झलक नज़र आती थी, पर वो मुझसे काफ़ी मुख्तलिफ थी। उसके वो शौक़ नहीं थे जो इसकी उम्र में मेरे हुआ करते थे। मैं अब तारा की भी जल्दी शादी करना चाहती थी। मुझे अपने माजी की वजह से तारा के लिए डर लगता था कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, पर तारा को पढ़ाई का काफ़ी शौक़ होता था। वसीम ने भी अपनी बेटी का साथ दिया था कि जैसे तारा का दिल होगा वो वैसा करेगी। तारा ने फैसला किया था कि वो पढ़ाई करेगी। उसे फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ था और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका नाम आ गया था। अब वो अपने शौक़ से पढ़ाई करने लगी थी। मैं कभी अकेली होती थी तो सोच में पड़ जाती थी कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। अभी कल का दिन था जब डॉक्टर ने मेरी गोद में नन्ही बच्ची रखी थी और ज़िंदगी की दौड़ इतनी तेज़ हो गई थी कि तारा बड़ी हो गई और मुझसे ज़्यादा समझदार हो गई थी। अब वो इतनी समझ रखती थी कि मुझे भी कभी कभी समझाती थी कि मैं कौन सा फ़ैसला करूं और मेरा कौन सा फ़ैसला अच्छा और कौन सा सही है। इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। इसी वजह से मैंने उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। कुछ ही तगो-दो के बाद मुझे एक काफ़ी अच्छा रिश्ता मिला। लड़का आलिम था और उसके साथ साथ वो बाहर से आला तालीम हासिल कर रहा था। वसीम ने रिश्ते की जांच पड़ताल की थी और फिर उसके बाद फ़ौरन ही रिश्ता पक्का कर दिया गया। तारा अभी ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि अभी सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है। वो भी मेरी बात समझ गई थी और मुझसे यही कहने लगी थी कि मेरी जो भी मर्जी है उससे मेरे फैसले से कोई मसला नहीं होगा। मैं बहुत खुश हो गई थी।
अब आराम से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने लगी थी तारा। अब्बू अम्मी भी अपनी नवासी को देखते थे तो बहुत खुश होते थे। उन्हें तारा के साथ बहुत जोड़ था, लेकिन अब्बू के नसीब में नहीं लिखा था कि वो तारा की जिंदगी की बाकी रंगीनियां भी देख पाते। वो ज़मीन संभालते संभालते इतने कमज़ोर हो गए थे और अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। इसी चक्कर में वो बीमार रहने लगे थे और अचानक ही उनकी सेहत ज़्यादा बिगड़ी। जब उन्हें सब शहर ले आए थे, कुछ देर बाद ही वो अस्पताल में मौजूद थे और डॉक्टर ने बताया था कि वो अब हम में से नहीं रहे। इस बात से सबको बहुत दुख हुआ था। मेरे जहन में सब कुछ फिल्म की तरह चलने लगा था कि अब्बू ने अपनी सारी जिंदगी मेरा साथ दिया था। मैं काफ़ी रोने लगी थी। तारा का भी यही हाल था। वो फ़ज़ा काफ़ी सोगवार हो चुकी थी। कुछ दिन तक मैं अब्बू को याद करती रही थी। वसीम ने मुझे बहुत संभाला था और मेरा काफ़ी साथ दिया था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे जब तारा के ससुराल वालों ने शादी की तारीख मांग ली थी और अब अपनी तारा को रुखसत करने का वक्त भी आने वाला था। ये सोचकर मेरी रूह बेचैन हो जाती, पर एक न एक दिन ये होना था। तारा की शादी की तारीख जल्द रखी गई, लेकिन अब्बू की वफ़ात को कुछ अरसा गुजरा था। यही सोच के सादगी से शादी करने का फैसला किया था। इस बात पर तारा को भी कोई इशू नहीं था और इस तरह कुछ ही वक्त बाद मेरी बेटी तारा भी अपने घरवाली हो गई। उसने सारी जिम्मेदारियां संभाली थी और मेरी अच्छी तरबियत का सबको सबूत पेश किया था। सभी खुश होते थे और मेरी काफ़ी तारीफ करते थे कि मैंने अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश की है। इस बात की मुझे हद से ज़्यादा खुशी भी होती थी। तारा हर हफ्ते हमारे पास आती थी, लेकिन जब भी वो मुझे काम करता हुआ देखती तो मुझे फ़ौरन बिठा देती थी और मेरे सारे काम करती थी। मुझे काफ़ी खुशी होती थी और मैं उसे बहुत दुआएं देती थी। अम्मी भी बस शहर आ गई थी, जबकि ज़मीन वगैरह मेरे चचा लोग संभालते थे। हमने ज़मीन से अपना हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। मेरा काफ़ी दिल था कि मैं वो ज़मीन लूँ, लेकिन इस गांव से अब मेरी तलख यादें वाबस्ता थीं। इस वजह से चाह कर भी मैंने ये फ़ैसला लिया था, जिसका मुझे पछतावा भी बिल्कुल नहीं था। अब अम्मी और मैं इकट्ठे रहते थे। वसीम भी जॉब से रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनका बिजनेस अभी भी चलता था, जिससे हमारा अच्छा गुजारा हो जाता था और किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।